Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we're going to start another topic of chapter, that is chapter 14, electric current and its effects. Okay, class 7th NCERT. ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. एंड में जब मैंने आपको थोड़ा सा क्या बताया था, किसके बारे में बताया था कि हीटिंग इफेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने बताया था. उससे हमने क्या क्या चीज़ें डेवलप करी ये मैंने बताई थी. तब उसके यूजेस में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी था. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक्चुअली करता क्या है. ये मैंने आपको बताया था कि वो है क्या, ये तो आपको पता चल गया, बट कैसे करता है, क्यों करता है, एवरीथिंग वी गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है. इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट्स the device from getting damaged by breaking the electric circuit connection. So what actually electric fuse did? It break the circuit, as I already told you in previous class as well. It break the circuit, it open up the circuit if electric current is more than what we required. Okay, so this is the most important point that you need to remember. What is it? That if electric current is more than what is required by that particular device, then electric fuse will melt and break itself to open up the electric circuit. Am I clear to everyone? Okay, I hope I am. Okay, so next thing is it is made up of material that melts quickly and break when large electric current passes through it. As I already told you, electric current when larger electric current passes through the electric circuit, it will melt itself and open up the circuit so that electric current will not reach to the device. Okay, it will damage the device, that's why it break itself. Next thing, it is always connected as a part of an electric circuit. So we always make our circuit and make it a part of it. No, it is not an extra thing that we attach to our electric circuit. It is part of it. You need to remember this. Okay. नेक्स्ट थिंग यूजेस देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं हमारे घर पे, ऑल अराउंड हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट. जो हमारा मेन हब होता है जहाँ से हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहीं से ही जब हम बनाते हैं तो वहीं पे हम बीच में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं, सो दैट इन केस कभी ऐसा हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, देन इट विल मेल्ट, okay, and break itself so that larger amount of electric current will not reach to our houses and break our circuits and even damage our devices, right. Next thing, electrical appliances from getting damaged. As I already told you, if more electricity will get into that device that is required by it, then that larger amount of electric current will damage the device, right. See, I will tell you how it work. Okay, and जो भी मैंने ये verbally आपको बोला है, okay, now I am going to show you with diagram, right. See, I am drawing one electric circuit. Okay, look at it carefully. This is a battery. As I already told you, when number of cells increase, we call it battery. 2 or more cell form a battery. Okay, this is positive terminal, this is negative terminal, right. This is switch. Okay, next thing, this is a bulb. Okay, and here let's connect here a fuse. Okay, right. Now as I already told you so many times, electric current always flow from positive to negative terminal. So what will be the direction? From this side, then bulb will glow, and then this. Okay, this is key. So as I already switch on, okay, as switch on, electric current will start flowing, but this bulb is of 10 volt. Okay, let's imagine this is of 10 volt and our cell wants 8 volt. So 2 voltage is 8 volt चाहिए उसको जलने के लिए, ग्लो करने के लिए, राइट. बट दिस सेल, दिस बैटरी कंटेन 10 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इज एक्स्ट्रा.
So what will happen when this current will reach here? The inside metal of the electric fuse will break itself, okay, melt itself. Now you can clearly see that circuit is open and bulb will not glow, because this electric fuse already know this. If this higher voltage electricity will reach to the bulb, it will damage the bulb will break, right? So this is how electric fuse protect our devices, our electrical wires, our home from short circuit, okay everyone, from damage. So I hope you clearly understand what is the importance of electric fuse, right? So now we'll start with the reasons, okay. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, आई एम श्योर, कि why we using this electric fuse, what were the reason, that's why we are using them, ओके. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब वोल्टेज ज़्यादा हो गई, जितनी वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा आने लग गई, तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. तो हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, आपने बहुत फ्रीक्वेंटली अपने घर पे भी सुना होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई. ये दो वर्ड आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुने होंगे एंड आई एम श्योर आपने सुने होंगे. नहीं सुने तो प्लीज़ आप दिस टाइम से ऑब्जर्व करना, आपके पेरेंट्स ये दोनों टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, राइट. आप ध्यान देना. शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? व्हेन टू वायर्स इन अ सर्किट टच ईच अदर, जब दो डिफरेंट वायर्स एक साथ टच हो जाए, जिनको एक साथ टच नहीं होना, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी, ओके. और फिर पूरे घर पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का इम्बैलेंस हो जाएगा और डिवाइसेस के पास ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, तो फ्यूज़ क्या करेगा? अपने आप को मेल्ट कर लेगा उस पॉइंट पे ही, ताकि बाकी डिवाइसेस डैमेज ना हो. अगर एक पर्टिकुलर सॉकेट में कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ है तो पूरे घर पे डैमेज ना हो. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है? खुद को मेल्ट कर लेता है एंड इट विल सेव द अदर डिवाइसेस, ओके. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंड इज ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग इज व्हाट? व्हेन मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जब आपने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप एक ही सॉकेट से चला रहे हो, सिंगल सॉकेट में. जैसे आपने देखा होगा 3 पिन प्लग होता है, उसमें ऊपर भी लग जाता है, नीचे भी लग जाता है, सामने भी लग जाता है, साइड्स में भी लग जाता है. तो आपने सब जगह पे कुछ ना कुछ लगा दिया और एक ही सॉकेट पे आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर दी, तो जितना करंट वहाँ पे आना चाहिए था उससे ज़्यादा आने लग गया. तो उससे क्या होगा? आपके डिवाइसेस के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा और डिवाइसेस भी डैमेज हो सकते हैं. इवन कॉपर वायर तक में आग लग सकती है ओवरलोडिंग की वजह से, राइट. सो इसलिए हमें क्या होता है उसके लिए? फिर हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं. तो ऐसा होने से पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ही खुद को मेल्ट कर देता है और क्या करता है? सर्किट ब्रेक कर देता है, ओपन कर देता है. तो आगे करंट फ्लो ही नहीं होता, तो डिवाइसेस वर्क ही नहीं करते, सॉकेट के ऊपर लोड नहीं पड़ता, ओके. तो अब आपको दो रीजन पता चल गए, दो नए टर्म पता चले आपको कि शॉर्ट सर्किट कब यूज करना है, ओवरलोडिंग कब यूज करना है. नाउ यू नो दैट, ओके. सो ट्राई टू imbibe these words in your daily life as well, okay, so that it will improve your vocabulary and you know how to use them, right. Now we're going to discuss about MCB. What is MCB? What is the full form of MCB? Miniature circuit breaker, ओके. एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर, राइट. मिनिएचर फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर. दिस इज ऑल्सो वर्क लाइक एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, बट इसके कुछ फीचर्स डिफरेंट है, ये थोड़ा सा एडवांस है एक्चुअली, ओके. सो ये क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक स्विच. दिस इज अ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विच दैट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ. जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, इट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, ओके. आप मेरे साइड में पिक्चर देखो पहले. दिस इज MCB, राइट. आप ध्यान से देखो, आपने देखी भी होगी अपने घर में. दिस इज MCB, ओके. जो हमारा मेन सर्किट होता है वहां पर आपको यही दिखती है, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, MCB कैन बी टर्न ऑन टू रिस्टोर द सर्किट. लाइक आपने फील किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इफ अ फ्यूज मेल्ट इटसेल्फ देन वी सपोज टू चेंज द फ्यूज एवरी टाइम. बट MCB को हमें चेंज नहीं करना. MCB जब टर्न ऑफ हो गई, सिंपली हमें बस जाना है और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो उसको ऑन कर देना है. तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट, राइट. तो आप उसको इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक्चुअली डिसएडवांटेज बोल सकते हो, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, MCB इज बेटर बिकॉज इट डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. नेक्स्ट थिंग, इट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है. जैसे ही उसको ज़्यादा हीट फील होगी, वो अपने आप क्या हो जाएगा?
मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे एक सर्टेन हीट तक ही क्या कर रखा है, बना रखा है, ऐसे मटेरियल से बना रखा है कि जितनी हीट हमें चाहिए तब तक तो उसके अंदर से फ्लो करती रहे, पर जैसे ही उससे ज़्यादा हो जाए वो खुद को क्या कर ले, मेल्ट कर ले, राइट, वो मेल्ट हो जाए उस हीट से। ओके एवरीवन, बट एमसीबी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। पहले मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट बताऊंगी, देन आप समझ जाओगे कि ये कैसे वर्क कर रही है। वो हम करेंगे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट टुमारो की वीडियो में। आज हमने क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज डिस्कस किया हमने डिस्कस किया ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीबी। अब हम दोनों को थोड़ा सा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड एमसीबी। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे जो डिफरेंस लिखा है वो वही का अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MCB work on the magnetic effect of electric current. First difference. Second difference, MCB can no need to be changed again and again, but every time we supposed to change electric fuse whenever it melts, okay, to complete the circuit, right everyone. Next thing, MCB can be turned on to restore the circuit. Electric fuse need to be changed every time, right. It is an electric switch that automatically turn off when current in the circuit exceed the safety limit. And what happen in electric fuse? Electric fuse melt when excess amount of electric current pass through the circuit to break the circuit and open it up. Okay, so this is the difference between electric fuse and MCB, right? तो ये सब टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.